Today we will discuss about dual cycle or limited pressure cycle. Okay, we have already discussed about Otto cycle and diesel cycle. In the case of Otto cycle, it is assumed that heat addition or we can say combustion takes place at constant volume, and in case of diesel cycle, it is assumed that heat addition or combustion takes place at constant pressure. But in practice they are far from real, because in case of Otto cycle, the combustion cannot take place at constant volume because it requires some time. Although we assume that it requires only of some millisecond, but it takes some longer time than what we assumed in our assumption. Correct? So it's not a constant volume process. And again, in case of diesel cycle, we have assumed that heat addition takes place at constant pressure, but we know that, or you are going to learn in internal combustion engine, that during combustion, the due to the energy produced by combustion, the pressure of the pressure inside the cylinder increases. So the pressure is not constant during diesel cycle, but in idealization we have assumed that pressure is constant in diesel cycle. So we have generally made a compromise that the heat addition in case of internal combustion engine neither takes place at constant volume nor at constant pressure. So क्या हम assume करते हैं that heat addition takes place at constant volume and constant pressure both. Correct? So this is known as your dual cycle, because here heat addition takes place at constant volume as well as constant pressure. करेक्ट? बाकी जो भी साइकिल्स हैं आपकी वो सेम रिमेन रहेंगी. ओनली हियर इज डिफरेंस विथ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल दैट हीट एडिशन और कॉम्बस्शन takes place at constant volume as well as constant pressure. Correct? So here you in this screen you can see that limited pressure cycle or dual cycle. This cycle is also called as the dual cycle, which is shown in the figure. In this figure you can see here, and here the heat addition occurs partially at constant volume and partially at constant pressure. Correct? Actually the high speed diesel engine runs only on this cycle. Nowadays the automobile manufacturer are using this cycle for internal combustion engine. Correct? This cycle is a closer approximation to the behavior of the actual Otto and diesel engine, because in the actual engine the combustion process does not occur exactly at constant volume or at constant pressure, but rather as in the dual cycle. So here we can see that remaining processes are the same. The only difference is in the case of heat addition process. So you can see here for process 1 to 2 it's the same reversible adiabatic compression. Then here 2 to 3 is again the heat addition at constant volume. Then at process 3 to 4 is heat addition at constant pressure, and 4 to 5 is isentropic expansion. It means piston is doing some work, एंड अगेन 5 to 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. तो आप इस साइकिल में ऑन द पीवी प्लॉट देख सकते हो कि सब कुछ सेम है. 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन सेम, 4 to 5 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक्सपेंशन सेम, 5 to 1 हीट रिजेक्शन सेम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. केवल आपको यहाँ पे क्या देखना है कि हीट एडिशन इज टेकिंग प्लेस एट पार्सली एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड पार्सली एट कांस्टेंट प्रेशर. करेक्ट? दिस इज द पीवी प्लॉट. 1 to 2 आपका कंप्रेशन हो रहा है, 2 to 3 हीट एडिशन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, 3 to 4 हो रहा है हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और 4 to 5 आपका एक्सपेंशन है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को मूव करता है, और 5 to 1 आपका हीट रिजेक्शन हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे. करेक्ट? इन द टीएस प्लॉट यू कैन ऑल्सो सी 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक. इट मीन्स एंट्रोपी इज कांस्टेंट. तो स्ट्रेट लाइन है. अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात है 2 to 3 एंड 3 to 4. The slope of 2 to 3 is more than the slope of 3 to 4. Why? Because we have already discussed that in the case of temperature and entropy diagram, the slope dt by ds of constant volume is more than the slope of constant pressure. हमने देखा था ना dt by ds equal to t by cv आया था in case of constant volume में, और t by cp आया था in case of constant
प्रेशर में, तो Cp की वैल्यू ज़्यादा होती है Cv से, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो 3 to 4 को देखो कम दिखाया गया है एंड 2 to 3 को क्या दिखाया गया है, ज़्यादा दिखाया है, करेक्ट। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे। अब अपन देख लेते हैं किसका कि हाउ वी ड्राइव हेयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल साइकिल, करेक्ट। तो हीट सप्लाइड आप यहाँ पे देख लो क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर पे। तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम जानते हैं हम एम सी वी डेल्टा टी एंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर एम सी पी डेल्टा टी, कई बार पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो एम सी वी 1 to 2 के लिए अप्लाई करो आप, सॉरी 1 to 2 तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, 2 to 3 के लिए अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू, और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के लिए अप्लाई करो तो एम सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। देख सकते हो यहाँ पे हीट सप्लाई टोटल कितना हो गया, एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में प्लस एम सी पी टी फोर माइनस टी थ्री कॉन्स्टेंट प्रेशर में। हीट रिजेक्टेड कहाँ हो रहा है, 5 to 1 में। इट मीन्स यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो एम सी वी टी फाइव माइनस टी वन। अब अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे, थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड कहाँ हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट प्रेशर पे, करेक्ट। आउटपुट क्या हो जाएगा आपको, आउटपुट क्या होगा, नेट वर्क डन, करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या देखते थे हम, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो है, करेक्ट। तो सिंपली क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाइड कहाँ है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट रिजेक्टेड कहाँ है, 5 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम में, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख लो नेट वर्क डन क्या आ गया आपका, हीट सप्लाइड कितना हो गया, एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू प्लस एम सी पी टी फोर माइनस टी थ्री जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, माइनस हीट रिजेक्टेड कितना है, 5 to 1 एम सी वी टी फाइव माइनस टी वन। ये हो गया नेट वर्क डन आपका। हीट सप्लाइड कितना है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट प्रेशर यानी कि एम सी पी टी थ्री माइनस टी टू प्लस एम सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। तो आप दोनों वैल्यू को पुट कर दो, फिर थर्मल एफिशिएंसी को आप सॉल्व कर लो, जैसा ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल केस में सॉल्व किया था। यहाँ तक हो जाएगा आपको। देन आपको कम आना है प्रोसेस 1 to 2 एंड 4 to 5 में इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हमने ऑटो और डीजल में किया था। 1 to 2 में अप्लाई किया था हमने ना, पी के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी के पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन सिंपल टी टू बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई पी वन के पावर गामा माइनस वन बाई गामा इक्वल टू वी वन बाई वी टू के पावर गामा माइनस वन, करेक्ट। तो आप यहाँ पे 1 to 2 में एक बार अप्लाई कर दो एंड देन अगेन आप 4 to 5 में अप्लाई कर दो, करेक्ट। द सेम प्रोसीजर जैसा ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल में आपने सॉल्व किया था, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पे हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट हेयर अबाउट प्रेशर रेशियो, करेक्ट। ऑलरेडी हमने दो टर्म देख चुके हैं, करेक्ट, कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो। यहाँ एक नया टर्म आएगा प्रेशर रेशियो, दैट इज P3/P2, करेक्ट। यहाँ पे देखो प्रेशर इसका ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0.2 to 0.3 में। तो यहाँ पे प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, प्रेशर आफ्टर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन प्रेशर बिफोर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, करेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो P3/P2 इक्वल टू RP, V4/V3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या होता है कट ऑफ रेशियो, एंड V1/V2 इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो R, करेक्ट। अब 0.1 to 2 लगाओगे आप एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो T2/T1 इक्वल टू V1/V2 के पावर गामा माइनस वन। V1/V2 क्या है हमारा यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो, इट मीन्स R के पावर गामा माइनस वन, तो ये लिखा है T2 इक्वल टू T1 R के पावर गामा माइनस वन। अगेन T3 इक्वल टू T2, ऐसा क्यों, यू कैन सी हियर T3 इक्वल टू T2, it's not correct I think, yes, T3 equal to T2 into RP, correct, because for 2 to 3 it's constant volume process, correct. So T3 equal to T2 into RP, T2 की वैल्यू आप वहाँ से ले लो T1 R पावर गामा माइनस वन, तो T3 वैल्यू आ गई T1 R के पावर गामा माइनस वन इंटू RP। अगेन T4/T3 इक्वल टू RC, RC मीन्स V4/V3, करेक्ट। तो RC इक्वल टू क्या आ गया T1 इंटू R के पावर गामा माइनस वन इंटू RP इंटू RC।
अगेन आप प्रोसेस 4 to 5 देख लेते हैं, जो आपका एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करते हैं पॉइजन्स इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा T5/T4 इक्वल टू V4/V5 के पावर गामा माइनस 1। अब ऊपर नीचे आपने V2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो किस टर्म में आ गया, RC अपान आर के टर्म में, जहाँ RC क्या है आपका कट ऑफ रेशियो, R क्या है इट्स ए कंप्रेशन रेशियो, करेक्ट। देन T5 इक्वल टू आ गया T1 RP RC के पावर गामा। इट्स वेरी इजी, आपको केवल ऑटो डीजल अगर समझ में आ गया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि एक बार आपको सारे फॉर्मूले लगा लगा के केवल आगे आपको प्रोसीड करते चले जाना है बस, करेक्ट। तो आप जब फाइनली सारी वैल्यूज पुट करोगे इक्वेशन में थर्मल एफिशिएंसी के, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा एन थर्मल एफिशिएंसी आप ड्यूल साइकिल 1 - 1 अपान आर के पावर गामा माइनस 1 एंड टॉप पे आपको दिखेगा RP RC के पावर गामा माइनस 1 अपान RP माइनस 1 प्लस गामा RP RC माइनस 1। From the above equation, it is observed that a value of RP greater than 1 results in a increased efficiency for a given value of RC and gamma. It means आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। Thus the efficiency of the dual cycle lies between that of the Otto cycle and the diesel cycle having the same compression ratio. So it's the expression for the dual cycle, and with RC equal to 1 it becomes an Otto cycle, correct, and with RP equal to 1 it becomes a diesel cycle, करेक्ट। अगर आप RC की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे इट बिकम्स एन ऑटो साइकिल, और अगर RP की वैल्यू आप 1 रख दो इट बिकम्स अ डीजल साइकिल, करेक्ट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द डीजल साइकिल, सॉरी ड्यूल साइकिल, इट्स आल्सो नोन एज लिमिटेड प्रेशर साइकिल। आजकल जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो भी आपका इंजन बना रहे हैं वो ड्यूल साइकिल पे रन कर रहे हैं। बेसिकली जो डीजल ऑटोमोबाइल हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, ड्यूल साइकिल पे वर्क कर रही हैं, करेक्ट। तो आज के लिए बस, थैंक यू।